السلام علیکم دوستو، جو کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم سیر کریں گے امریکہ کی ایک ایسی ریاست کی جہاں سے پوری دنیا کو انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی فراہم کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی ریاست ہے اگر اسے امریکہ کا معاشی دل کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، اور قدرت نے اسے دنیا میں ہی ایک نو کی جہنم بنا دیا ہے، جہاں کے ایک شہر میں آگ تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے اور رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آگ امریکہ کے معاشی دل پر لگی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ریاست دنیا کے امیر ترین یہودیوں کا مسکن بھی ہے۔ دوستو آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسی ریاست کی سیر پر جو دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت ہے، خوبصورتی اور ترقی کا امتزاج اور مواقع کا گہوارہ ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں امریکی ریاست کیلیفورنیا کی۔ تو کیلیفورنیا کی سیر پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ ہمارا یہ سفر محبت بھرا اور خوشگوار رہے۔ کیلیفورنیا، جہاں قدرتی خوبصورتی اور جدید ٹیکنالوجی کا حیرت انگیز امتزاج پایا جاتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی مارکیٹ اور خوابوں کی سرزمین ہے۔ یہاں کی بلند و بالا درخت، گولڈن گیٹ برج اور ٹیسلا گاڑیوں کی لائنیں دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سین فرانسسکو کی چمکدار سڑکیں اور لاس اینجلس کا شاندار لائف سٹائل ہر زاویے سے ایک نیا تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ ریاست نہ صرف دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز کا مرکز ہے، بلکہ یہاں کی ثقافت، تاریخ اور قدرتی مناظر بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ کیلیفورنیا ایک ایسا مقام جہاں ہر لمحہ نیا خواب جنم لیتا ہے۔ دوستو کیلیفورنیا کا کل رقبہ تقریباً 4,23,970 مربع کلومیٹر ہے، جو اس رقبے کے لحاظ سے امریکہ کی تیسری بڑی ریاست بناتا ہے، اور کیلیفورنیا امریکہ کا سب سے زیادہ متنوع جغرافیہ رکھنے والی ریاستوں میں سے ایک ہے۔ یہ ریاست مغربی ساحل پر واقع ہے اور اس کی سرحدوں پر شمال میں اوریگن، مشرق میں نیواڈا اور ایریزونا سے ملتی ہیں، جبکہ اس کے جنوب میں میکسیکو کے علاقے ہیں۔ اس کا ساحلی علاقہ بحر الکاہل کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے کیلیفورنیا کا موسم معتدل اور خوشگوار رہتا ہے، خاص طور پر ساحلی علاقوں میں۔ سیکرامنٹو شہر اس ریاست کا دارالحکومت کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر ہم اس کی آبادی کی بات کریں تو اس کی کل آبادی تقریباً 39 ملین افراد پر مشتمل ہے، اور یہ امریکہ کی گنجان آباد ریاستوں میں شمار ہوتی ہے۔ دوستو کیلیفورنیا ایک متنوع ریاست ہے جہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ عیسائیت سب سے بڑا مذہب ہے، جس میں کیتھولک، پروٹسٹنٹ اور آرتھوڈوکس شامل ہیں۔ مسلمانوں کی بڑی کمیونٹی خاص طور پر عرب، جنوبی ایشیائی اور ایرانی نژاد افراد لاس اینجلس اور سین فرانسسکو میں آباد ہیں۔ یہودی کمیونٹی بھی نمایاں ہے، جبکہ بدھ مت، ہندو مت اور سکھ مت کے ماننے والے خاص طور پر ایشیائی اور بھارتی نژاد امریکی اہم تعداد میں موجود ہیں، اور ملحد افراد بھی بڑی تعداد میں ہیں، اور دیگر چھوٹے مذاہب جیسے بہائی، جین مت اور مقامی امریکی عقائد بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ تنوع کیلیفورنیا کو ایک منفرد اور ہم آہنگ معاشرہ بناتا ہے۔ دوستو کیلیفورنیا امریکہ کی امیر ترین ریاست کا بھی درجہ رکھتی ہے۔ یہ امریکی ریاست ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ کیلیفورنیا کی جی ڈی پی $4 ٹریلین ہے، جو پورے ملک کی جی ڈی پی کا 14% بنتی ہے۔ اگر کیلیفورنیا ایک ملک ہوتا تو یہ دنیا کی چوتھی سب سے بڑی مضبوط معیشت ہوتا، اور کیلیفورنیا نے اس وقت دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی جب قدرت نے اس کے ایک شہر لاس اینجلس کو مکمل طور پر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اس وجہ سے امریکہ کو کئی بلین ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے۔ یہ نقصان صرف شہر کا نقصان نہیں ہے، بلکہ اس نے پورے امریکہ کو ایک بہت بڑا جھٹکا دیا ہے۔ 1,20,000 ایکڑ سے بھی زیادہ زمین راکھ کا ڈھیر بن چکی ہے، اور یہ آگ پورے لاس اینجلس کے علاقے میں پھیل چکی ہے اور ابھی تک بجھائی نہیں جا رہی۔ اور آگ پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہوائیں 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے لگی ہیں، جس کی وجہ سے شعلے دور دور تک پھیل رہے ہیں۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق 25 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ آگ سے متعلق انشورنس کمپنیاں دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں، اور اب تک $275 بلین کا نقصان ہو چکا ہے۔ دوستو دنیا کے سب سے امیر یہودی بھی اسی ریاست میں رہتے ہیں۔ یہودیوں کی سب سے بڑی آبادی بھی یہاں آباد ہے، جن میں سے زیادہ تر لاس اینجلس میں رہتے ہیں۔ اس آگ کے نتیجے میں یہودی کمیونٹی کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس میں سب سے بڑا نقصان پاسادینا ٹیمپل کا ہے، جو یہودیوں کے لیے سب سے اہم عبادت گاہ ہے، اور یہ تقریباً 80 سال پرانا ہے، جو اب راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہودیوں کو کتنے نقصان کا سامنا ہوا ہے، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ نقصان بہت زیادہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لاس اینجلس کے یہودیوں نے اسرائیل کو بڑی مقدار میں مالی امداد فراہم کی تھی؟ لاس اینجلس کی ایک فاؤنڈیشن کے مطابق کچھ وقت پہلے اسرائیل کو $55 ملین کی امداد بھیجی گئی تھی، تاکہ اس کا استعمال غزہ کے لوگوں پر ظلم ڈھانے کے لیے کیا جا سکے۔ لیکن آج یہ خود اس صورت
हाल के शिकार हैं। इस आग के बाद इसराइल ने भी जंग बंदी की तरफ कदम बढ़ाया है और कतर इसमें अहम किरदार अदा कर रहा है। दोस्तों, तकरीबन 81,000 पाकिस्तानी कैलिफोर्निया में रहते हैं, जबकि भारतीयों की भी बड़ी तादाद रहती है जो कि तकरीबन 18 लाख हैं। और अक्सर भारतीय लोग सैन जोस में रहते हैं, जबकि कई पाकिस्तानी IT के शोबे में काम कर रहे हैं। लॉस एंजलिस का एक इलाका है जिसका नाम बेवर्ली हिल्स है, जो दुनिया के सबसे महंगे इलाकों में से एक माना जाता है। ये अमेरिका का सबसे लग्जरी और महंगा इलाका है, जहां मकानात करोड़ों डॉलर्स के हैं और यहाँ पर मशहूर शख्सियात भी रहती हैं, जहां आपको पाकिस्तानी 5 लाख रुपए से कम की जैकेट भी नहीं मिलेगी। इस इलाके में आपको दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स और दुनिया की सबसे लग्जरी गाड़ियां मिलेंगी। एक आम आदमी के लिए इस इलाके में प्रॉपर्टी खरीदना आसान नहीं है। कैलिफोर्निया में लोगों की सालाना आमदनी $1,60,000 है, जिसका मतलब है कि उन सब के पास करोड़ों डॉलर्स हैं। हॉलीवुड सिटी के करीब एक ऐसा इलाका है जहां ट्राम्स चलती हैं, जिस पर बैठकर आप पूरे इलाके का मंजर देख सकते हैं। लॉस एंजलिस में जिंदगी इतनी जदीद हो चुकी है कि यहाँ की तरसील का काम रोबोट्स के जरिए किया जाता है, जिन्हें आप अक्सर सड़कों पर चलता हुआ देखेंगे। दोस्तों, एक बात बताता चलूं, अमेरिका की हर रियासत का एक अपना परचम होता है। इसी तरह कैलिफोर्निया का भी एक अपना परचम है, जिस पर रीछ बनाया गया है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि यह रीछ गलती से बनाया गया था। डिजाइनर से कहा गया था कि वो परचम में पेयर बना दें, जिसका मतलब था कि परचम में नाशपाती होना चाहिए, लेकिन उसने ये समझा कि ये बेयर बनाना है, तो उसने परचम में बेयर बना दिया और आज तक ये इसी तरह चल रहा है। दुनिया के सबसे बुलंद और कदीम दरख्त भी कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं, जो 380 फुट से ज्यादा बुलंद और 4,800 साल से ज्यादा पुराने हैं। घोस्ट टाउन भी कैलिफोर्निया में मौजूद है। जब सोना दरियाफ्त हुआ था तो बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ आकर आबाद हुए थे। सोना खत्म होने के बाद 500 से ज्यादा लोग यहाँ आबाद रहे, लेकिन ज्यादातर लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं। 2011 में कैलिफोर्निया के एक रेस्टोरेंट में दुनिया का सबसे बड़ा चीज बर्गर बनाया गया था, जिसका वजन 777 पाउंड था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगला ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस में 2028 में होने वाला है, लेकिन इससे पहले कि लॉस एंजलिस का सारा शहर जलकर तबाह हो गया और इसके बाद सबसे मशहूर शहर सैन फ्रांसिस्को है, जो लॉस एंजलिस से 600 किलोमीटर दूर वाक़ है। ये शहर भी जदीद और बुलंद इमारतों से भरा हुआ है। जापानी और चीनी अफराद की बड़ी तादाद यहाँ आबाद है। यहाँ वर्ल्ड वार 2 के बाद बहुत से चीनी और जापानी अफराद को कैद कर लिया गया था। इस इलाके की ज्यादातर साख्त बुलंद और नीचे चढ़ाई वाले रास्तों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, ये शहर दुनिया भर को टेक्नोलॉजी फराहम करता है। इस शहर के सिलिकॉन वैली में दुनिया की तमाम बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां मौजूद हैं। दुनिया भर की कम्युनिटीज इस शहर में आबाद हैं। इसकी आबादी सिर्फ 33 लाख है, लेकिन हर साल 2 करोड़ 30 लाख सियाह यहाँ आते हैं। टेक्नोलॉजी और IT के लिहाज से ये शहर दुनिया के लिए बहुत अहम है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $2 लाख के बराबर है, जो पाकिस्तानी 5 करोड़ के बराबर बनते हैं। लेकिन यहाँ रहने का खर्चा पूरे अमेरिका की निस्बत सबसे ज्यादा महंगा है, क्योंकि ये बाकी अमेरिका के शहरों से 25% ज्यादा महंगा है। यहाँ हर चीज रिहायश से लेकर खाने तक सब कुछ महंगा है। इस शहर का गोल्डन गेट ब्रिज सबसे मशहूर है। दोस्तों, इस शहर में एक ऐसी जगह भी है जहाँ से टेक्नोलॉजी दुनिया भर को फराहम की गई है और ये जगह टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा मरकज भी है और ये इलाका सिलिकॉन वैली कहलाता है। इसका नाम कंप्यूटर चिप्स और कंडक्टर्स में इस्तेमाल होने वाले सिलिकॉन की वजह से रखा गया है। कैलिफोर्निया दीगर मैदानों में भी सबकत रखता है। यहीं पर फेसबुक, एप्पल, गूगल और इंटेल जैसे नामवर कंपनियों के मरकजी दफातर वाक़ हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 10 लाख मुलाजमीन में से तकरीबन 1/4 कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में ही काम करते हैं। इस शहर में आप ज्यादातर टेस्ला गाड़ियां देखेंगे जो ड्राइवर लेस होती हैं। यहाँ बाईसाइकिल की सहूलत भी फराहम की जाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ खाने के स्टेशन भी कायम किए गए हैं, जहाँ आप किसी भी जगह खड़े होकर खाना खा सकते हैं। अगर मुलाजमीन काम करने के बाद थक जाएं, तो वो यहाँ कुछ देर के लिए आराम कर सकते हैं और यही वजह है कि कैलिफोर्निया की रियासत की अहमियत पूरे अमेरिका में महसूस की जाती है। दोस्तों, गो के कैलिफोर्निया के बारे में सोचते वक्त मुमकिन है कि आपके जहन में दरख्तों के बारे में कोई ख्याल ना आए, मगर इस रियासत के कुल रकबा का 45% हिस्सा घने जंगलात से घिरा हुआ है। कैलिफोर्निया में आप दुनिया के सबसे बड़े, लंबे और कदीम दरख्तों का नजारा कर सकते हैं। कैलिफोर्निया अमेरिका की ज़राअत में एक अहम किरदार अदा करता है। यहाँ के सरखेज मैदान और जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी इसे दुनिया के अहम ज़राअती मराकज़ में शामिल करते हैं। बादाम, अंगूर और स्ट्रॉबेरी की दुनिया भर में बरामद भी यहीं से की जाती है। शराब साजी में नापा वैली और सोनामा वैली दुनिया की बेहतरीन वाइनरी इलाकों में शुमार होते हैं। हॉलीवुड की वजह से कैलिफोर्निया दुनिया की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का मरकज है। फिल्म और टेलीविजन की पैदावार यहाँ की मैशत का एक अहम हिस्सा है। सियाहों की बड़ी तादाद की आमद से मैशत को बड़ा सहारा भी मिलता है। ये रियासत
रियासत अपनी मतनू सकाफत के लिए मशहूर है, जहाँ हर कौम के लोग अपनी रिवायात के साथ रहते हैं। कैलिफोर्निया के लोग फिटनेस, सेहतमंद गिज़ा और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देते हैं। सहलों पर सर्फिंग करना और हाइकिंग करना यहाँ के मकबूल खेल हैं। कैलिफोर्निया में अमेरिका की सबसे बड़ी झील साल्टन सी वाक़ है। ये रियासत दुनिया की सबसे ज्यादा सिनेमा फिल्में बनाने के लिए मशहूर है। डेथ वैली दुनिया का सबसे गर्म मकाम है, जहाँ टेम्परेचर 56.7 सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। गोल्ड रश की वजह से 1849 में कैलिफोर्निया में बड़े पैमाने पर लोगों की आमद हुई और ये अमेरिका की एक ऐसी रियासत है जहाँ बहुत ज्यादा तादाद में ज़लज़ले वगैरह आते रहते हैं। दोस्तों, कैलिफोर्निया जो आज टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है, कभी फ्रूट ऑर्चर्ड्स के लिए जाना जाता था। ये वाहिद अमरीकी रियासत है जिसने मौसम गर्मा और मौसम सरमा दोनों ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। किंग्स कैनन कैलिफोर्निया ग्रैंड कैनन से ज्यादा गहरा है। कैलिफोर्निया की मईशत अमेरिका में सबसे बड़ी और दुनिया में 5वें नंबर पर है। कैलिफोर्निया रिपब्लिक एक ऐसा मुल्क था जो तकरीबन वजूद में आ गया था। सैन फ्रांसिस्को की केबल कार अमेरिका की पहली मुतहर्रिक नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क है। हॉलीवुड में पहली फिल्म 1910 में D.W. ग्रिफ्थ ने शूट की थी। सैन बर्नार्डिनो काउंटी रकबे के लिहाज से अमेरिका का सबसे बड़ा काउंटी है और ये काउंटी कैलिफोर्निया में वाक़ है। कैलिफोर्निया बादाम की पैदावार में दुनिया में सबसे आगे है। दोस्तों, कैलिफोर्निया का नाम स्पेनी एक्सप्लोरर की कहानियों से लिया गया है, जो एक ख्याली जजीरा नुमा जन्नत के बारे में थी। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका की अमीर तरीन रियासत कैलिफोर्निया की एक शानदार और दिलकश सैर। उम्मीद है ये सैर भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में भी अपनी कीमती राय का इजहार करें। अल्लाह निगहबान।